घरेलू झगड़े पर भाई ने अपने ही भाई के साले को गोली मार दी। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ 10 ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਿਦਾਦਾ ਪੁੱਤਰ। इसी कमरे में इसी जगह पर इनकी टांग का थोड़ा सा मसला है, इनकी घिटे में चोट आई हुई है, चल नहीं सकती, फ्रैक्चर है। तो इनके सामने सारा मसला होता है और ये बहन वहाँ पर मौजूद होती है। धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को मारते हैं, उसको धक्का दे के गिराया जाता है, वो उठ के आता है, जो कि इनकी ज़बानी ये सारा वकूआ है। बहन सामने खड़ी हो जाती है और वो पिस्टल निकाल लेता है, गोली मारने लगता है। तो माँ कहती है इतना बड़ा जुल्म ना करना मेरे बच्चे पे, और इतनी बात होती है कि उसके दिल पे गोली मार देता है और उनका बच्चा उसी वक्त अपनी माँ के हाथों में जान दे देता है। इस माँ को आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है अपने बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ बैठ के दुआइयाँ दे रही है, लेकिन अभी तक मुलजमान में से एक भी शख्स नहीं पकड़ा गया। इस वकूए को एक हफ्ता हो गया है। मकतूल की वालदा और बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं इस वक्त बड़े कर्ब में है कि ये सारा वकूआ था क्या। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਸਨੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਸ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੇਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਦਫਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕਰੀਨਕਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਬੋਲ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ 10 ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਝੰਜੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਤਰਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਵਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਸ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बड़ी ज्यादती की है, इन्हें मेरी कोई गल सुनी ही नहीं। बहन मेरे साथ मौजूद है, ये उस मौके पर मौजूद थी। आपने उस वक्त उनको रोकने की कोशिश नहीं की उनको? मैंने बहुत की कोशिश। मैं और मेरा भाई बाहर खड़े बातें कर रहे थे, इतने में वो आए भाई तीनों, शहजाद भाई मेरा बिनोई और पीछे इलियास जो मारने वाला, और वो तीसरा भाई पीछे खड़ा रहा। ये दोनों आगे पास खड़े हो गए। आगे साथ ही उसने बिनोई ने कहा कि हूँ दस मैं अपना भरा लै आया वहाँ, बड़ा कह रहा सी ना कि जा अपने भरा लै के आ, मैं अपने भाई को ले आया हूँ। मेरे बिनोई ने कहा अहमद को,
इतने में अहमद ने कहा बाहर खड़े होकर बात ना करो, अंदर बैठ के बात करते, जो भी बात है मोहल्ले में शोर ना करो। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं आके मेरा भाई इधर बैठा, बेनोई इधर सामने बैठा, इलियास इधर ही खड़ा रहा। अहमद ने उसको कहा बैठ जाओ। आगे से इलियास कहता कातिल मारने वाला कहता मैं बैठने नहीं आया। आते साथ ही उसने ना अहमद को कहा तुमने मेरे भाई को गालियाँ क्यों निकाली। उन्हें कहा मेरा कार है आराम ना गाल उच्छी ना बोल। इतने में उसने अहमद को धक्का मारा, ये सोफ़ा उलट के नीचे आ गया। मैंने चीखें मारी, चीखें मार के मैंने उस इलियास को धक्का दिया। मैंने कहा पीछे हो जाओ। मैंने उसको धक्का मारा तो उधर से अहमद उठा, अहमद ने उठ के इलियास के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब अहमद ने इलियास के मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारे तो मैं आगे खड़ी हो गई। मैंने इलियास के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अपना उसको मारना, मेरे भाई से जो भी गलती हो गई माफ़ कर दो, मैं कहा उसके आगे से मारना ना। इतने में मैं भाई की तरफ हाथ खोल के खड़ी हो गई। मेरा मुंह अहमद की तरफ था, वो मुझे देख रहा था। मैं कहा अहमद बस, मैंने उसको कह दिया वो तुम्हें मारेगा ना, ना तुमने उस पर हाथ उठाना है। मैं चिल्लाती चीखती, एकदम से उसने मेरे पीछे से खड़े होकर पिस्टल को ऊपर से रखा, ऊपर से रख के तिरछी गोली मारी जो बाजू से दिल को चीर गई। जब बाजू से खून निकला वो खून मेरे ऊपर गिरा। खून गिरने से मेरा भाई ज़मीन पे तड़पा, हाथ पाँव मारे। मैं उसके पीछे भागी, मैंने उसकी टी शर्ट खींची, उसने मेरे बाजू से यूँ पीछे किया। मैंने मोहल्ले वालों को आवाज़ें दी, मैंने चीखें मारी। इतनी देर में उससे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसके हाथ में पिस्तौल ही थी। सारे मोहल्ले के लड़के देख के पीछे हो गए, तो इतनी देर में वो आगे चले गया। बिनो इधर ही बैठे ही रह गया। और इतनी देर में मेरे भाई का दम टूट गया और रूह परवास हो गई। मेरे हाथों सामने बैठे, मेरी अम्मी इधर ही बैठी रही, मैं चीखती चिल्लाती रही। भाई कमरों में थे, इनको पता नहीं चला, आवाज़ें नहीं पहुंची मेरी। रात 12:30-1 बजे का टाइम था। मुझे ये बताएं कि क्या यही सोफ़ा था जिस पे वो गिरा था? ये हाँ जी, इतना वजनी सोफ़ा, मैं रात को भी बैठ के देखूँ किसने इतना ज़ोर का धक्का दिया, सोफ़ा उलट के उसके ऊपर आ गया। इतने में मेरा भाई उठ के फिर उसके मुंह पे थप्पड़ लगाए। पहल उसने स्टार्ट की, घर में आते साथ उसने गिरेबान पकड़ा। वो घर से आए लड़ने था और मारने, ना कोई बात थी ना कोई वजह थी। सिर्फ हम सारे बहन भाई बैठे, मैं, अम्मी, अबू और मेरी बहन जो उसके साथ भी आई है बिनोई के साथ। अहमद बाहर से आया, आके बातें वगैरह कर रहे, करते करते अहमद कहता बिनोई को तुमने काम नहीं करना। कहता मैंने नहीं काम करना। कहता 4 महीने हो गया तुम्हें नौकरी छोड़े, तुम क्यों नहीं काम पे चलते। कहते मैं पागल हो गया। बिनोई ने कहा मैं पागल हो गया, मैं काम पे नहीं जा सकता। तो आगे से अहमद ने कहा ठीक है पागल है ना, फिर हमारी बहन को छोड़ जाओ, हम खुद ही रख लेंगे। आगे से कहता मैं तो नहीं छोड़ के जा रहा। मेरा भाई बेकसूरों की तरह मरा, नाजायज तड़प तड़प के मरा। उसका खून मेरी आंखों में बहता, मैंने अपनी आंखों से सामने सारा कुछ देखा। 1 हफ्ता हो गया हम तड़प पड़े अजियत में, ना कोई लड़ाई ना लड़ाई की वजह। खुदा वास्ते मेरे ते तरस खावो, मरियम नवाज मेरे ते तरस खावो। मेरी धीए तू भी मां में, तू भी भैन है। सानू वे साढ़े दिल ते की गुजर गई ना। हक मेरा पुत्र कतल हो गया, कोई वजह नहीं, कोई कथा नहीं। इन्हें अस मुंडे नू, मेरे पुत्र वड्डे ने बेटी भी दिती हुई है, पैदा होंदे ही दिती हुई है। इन्हें मेरा कोई रिश्ता नहीं रखिया। इन्हें मेरा बेहक कोई वजह होंदी, कोई लड़ाई जवाई साढ़े दी गल सी। बाल साढ़े जवाई दी, जवाई ते आके मट्टा बन के बैठ गया। जवाई ने ना उन्होंने कुछ किया ना उन्होंने कुछ किया। जवाई ते गुमसुम हो गया, तो पागल सी। ऐ ते समझदार सी, ऐ ते समझदार सी। पुत्रा मेरी वाह मुक गई, आज 8 दिन हो गई, मेरे लिए 8 साल हो गए। अमन नहीं घर आया। खुदा से मेरे अमन ने बुला दो, अल्लाह से मेरे अमन ने, मेरा अमन अल्लाह पाक इंसाफ देगा। मेरा 24 साल का शहजादा पुत्र है, मेरा शेर पुत्र है। अल्लाह वास्ते मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेरे पुत्रा। मैनू नींद नहीं आती पई, मैनू सबर नहीं आता, मेरी तो लत्त टुटी सी। मेरे ते खुदा मैं क्या पुत्रा, मैं भुप्पो तेरी, वे मेरे ते तरस खा ला। वे मैनू तू जो कहेगा मैं तेरी मनांगी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।